Hello students, welcome to the science class. Today's topic is types of chemical reactions. There are so many types of chemical reactions. These are given here. The first one is combination reaction, decomposition reaction. Decomposition में हम इसके 3 parts हैं: thermal decomposition, electrolytic decomposition, photolytic decomposition. Then third reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. Now I am going to explain one by one of them. The first one is combination reaction. What is combination reaction? जैसा कि नाम है, combination means combining. When two or more than two reactants combine together and form a single product, then it is known as combination reaction. So simply, when two or more reactants combined and form a single product is called combination reaction. Okay, क्या है? When two or more reactants combine together, then the reaction is called combination reaction. For example, the formation of water, hydrogen plus oxygen both combine together and they form water. Means hydrogen and oxygen अगर react करते हैं तो जो product form होता है, that is water, and this is a single product and these are the reactants. So here reactants combining together and this is single product. Okay, one more example: carbon plus oxygen, then they form CO2. More reactions, for example, when we add quicklime with water, with water. तो क्विकलाइम, यू नो द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, CaO, बहुत बार डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बताया है. जब इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं तो किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट एवॉल्व होती है और जो प्रोडक्ट बनता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट. तो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होते हैं और CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म करते हैं. सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. द सेकेंड टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल substance, a single reactant decompose means breaks into two or more products. The reaction in which a single reactant breaks into two or more products. Such type of reactions are known as decomposition reactions. Important point: this is the reverse reaction of combination reaction. Means उसका just opposite है. Combination में two or more reactants कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं और यहाँ सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है और टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं. मींस दीज टू रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि
डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शंस में क्या होगा, ये पॉइंट डाल दिया मैंने, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ब्रेक डाउन के लिए। नाउ just a moment before I have told you decomposition reaction is of three types: thermal decomposition, photolytic decomposition and electrolytic decomposition. So first we will discuss thermal decomposition. So the first is thermal decomposition. Thermal decomposition reaction means the decomposition by heat energy. It means the type of decomposition is categorized by the type of energy required for the decomposition. जिस टाइप की एनर्जी की हमें जरूरत हो रही है डिकम्पोजिशन के लिए, उसके ऊपर इस कैटेगरी को डिपेंड किया है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन है तो उसमें हीट एनर्जी की जरूरत हो रही है, फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होगा तो लाइट एनर्जी की जरूरत होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होगी। सो सेम है, थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजिशन बाय हीट एनर्जी। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विकलाइम प्लस CO2, ठीक है, गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो उस पर क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, single reactant, two products. Okay, one more example. This is one example. One more example. Lead nitrate PbNO3 का whole twice, PbNO3 का whole twice जब इसको हीट करते हैं, on heating the PbNO3 it will give lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen gas. Okay, so these two reactions are the example of thermal decomposition. Now the second part is electrolytic decomposition. Means decomposition by, अभी बताया था, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2O। H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। So this is an example of electrolytic decomposition, means electrical energy is required for the decomposition. The second means third one is photolytic decomposition. Decomposition. Not define photolytic decomposition. अभी डिफाइन कर चुके हैं हम दो को, तो इट मीन्स it is decomposition by, so decomposition by
Which type of energy? Light energy. Is called photolytic decomposition. For example, the breakdown of AgCl, तो ये बनेगा Ag, सिल्वर ग्रेस होता है, ग्रेस वाइट, ओके, और क्लोरीन गैस रिलीज होगी। वन मोर एग्जाम्पल, AgBr, ये भी Ag फॉर्म होगा। once again the same product it means it is grayish white in color, and one more product is bromine gas। तो इसमें कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एजेंट है या कोई सब्सटेंस है दैट इज ब्रेक्स इनटू प्रोडक्ट विच इज ग्रेस वाइट इन कलर, तो इट मीन्स या तो ये AgCl या AgBr होगा। वन मोर पॉइंट है, these reactions, these photolytic reactions used in black and white photography, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सरे, और जो अर्लियर टाइम में कैमरे आते थे जिसमें फिल्म पड़ती थी जिसको हम रील कहते थे, वो वाले कैमरे में भी इस तरह की फोटोग्राफी जो होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें भी इन रिएक्शंस का यूज होता था। ओके, सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। The third type of reaction is displacement reaction. Displacement reactions, these are the reactions in which a more reactive element displaces the less reactive element from its compound. So the reactions in which more reactive element displaces less reactive element. Okay, and such reactions are called displacement reactions. For example, जिंक अगर ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर जिंक को हमने ऐड किया, देन इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसमें जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना देता है जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है, यहां से हट जाता है। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेस। यहां पर कॉपर, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसके कंपाउंड से और खुद का कंपाउंड बना दिया। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये जिंक सल्फेट है, ये कलरलेस होता है जिंक सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, ओके, और ये ग्रे कलर मेटल है, ग्रेस कलर। So this is an example of displacement reaction. One more example, आयरन को अगर हम डालते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ब्लू कलर का होता है, तो ये देता है फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाता है। ये ब्राउन कलर कॉपर है, ब्राउन कलर होता है कॉपर का, ठीक है। कॉपर डिस्प्लेस हो गई, किसने, इसकी जो जगह थी वो किसने ले ली,
आयरन ने ले ली, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये होता है ग्रीन कलर, ओके। सो दीज टू reactions are displacement reactions. Now double displacement reaction, the fourth type of reaction is double displacement. इसमें यह होता है डबल डिस्प्लेस मीन्स यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसमें दो कंपाउंड्स में एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं और आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, मीन्स द रिएक्शन परफॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अच्छा इन रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल देते हैं। दीज रिएक्शंस ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन of precipitates, precipitate का फॉर्मेशन होता है, that's why these reactions are also known as precipitate या precipitation reactions. Precipitation reactions, ठीक है। For example, सोडियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड में ऐड करते हैं, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ अगर ऐड करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, देन इट फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस फॉर्म होगा और ये होगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में, व्हाइट प्रेसिपिटेट। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ ऐड किया तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, मीन्स इसका सोडियम इस बेरियम को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड बन गया और ये बेरियम ने सोडियम को रिप्लेस करके बेरियम सल्फेट फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस इस टेक्स प्लेस, इसके आयंस ब्रेक होकर और इसके आयंस ब्रेक होकर आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए और दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कर लिए। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। वन मोर एग्जांपल, AgNO3 तो अगर हम ऐड करते हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ, देन इट विल गिव AgBr, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। एंड सोडियम nitrate. So these two reactions are precipitation reactions और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पर जो सिल्वर है और नाइट्रेट आयन ये ब्रेक होकर और इधर से सोडियम और ब्रोमीन आयन ब्रेक होकर सिल्वर ब्रोमीन के साथ ऐड हो गया और ये इसके साथ, मीन्स इसने इसके साथ और ये इसके साथ। तो यहाँ पर दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
The fourth type of reaction is redox reaction. Redox reaction is a reaction in which reduction and oxidation, both the reactions takes place simultaneously. Means the reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously. ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस में। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दोनों एक साथ, देन इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। सो हम पहले देखेंगे रिडक्शन। This is defined as the process in which the addition of हाइड्रोजन, मीन्स अगर हाइड्रोजन किसी में ऐड होती है तो वो क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इट इज ऑल्सो डिपेंड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of oxygen, okay, it is also defined as the addition of hydrogen। और थर्ड पॉइंट हम इसको इलेक्ट्रॉन के केस में भी ले सकते हैं, लूज गेन ऑफ electrons। Listen, the process of removal of oxygen is called reduction. The process of addition of hydrogen is also known as reduction. The gain of electrons is also called reduction. So these are the processes involved in reduction. One by one example ले लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, KCl अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। जब हमने पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो यह फॉर्म हुआ पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मीन्स here removal of oxygen। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। अगर हम सोडियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्राइड बनता है। यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है, रिडक्शन है। वन मोर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ये फॉर्म होगी सिंपल जिंक एटम, जिंक आयन है, जिंक आयन। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या फॉर्म होगा, जिंक फॉर्म होगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एटम है जिंक का, तो ये जिंक एटम फॉर्म होगा। हियर इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So all these three examples are in different case of reduction. One is removal of oxygen, addition of hydrogen, and gain of electrons. Oxidation. It is defined as the process of gain of oxygen, means addition of oxygen. The process of addition of oxygen means रिडक्शन से जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीजन का एडिशन है तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन था तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लूज, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So these are the processes involved in oxidation. Now examples for oxidation: एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सी कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन को ऐड करें तो ये फॉर्म होता है CO2, तो यहाँ पर हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं तो ये सल्फर अलग हो जाता है और इधर H2O फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन means this is also oxidation. Third one is जिंक से अगर जिंक आयन फॉर्म होता है, जिंक एटम से जिंक आयन फॉर्म होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इसके निकल जाते हैं और ये बन जाता है जिंक आयन। तो ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So these are the examples of oxidation reaction. And when oxidation and reaction, both reactions takes place simultaneously, then the whole reaction is known as redox reaction.